55, 55 اور 95 ہر عمر کے افراد کے لیے یکساں مفید مفاد عامہ کا علمبردار. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل. اقبال نظیر صاحب اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے. بڑے خوبصورت الفاظ تھے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس سے پہلے ڈاکٹر سعید پارانی صاحب نے رمضان بھائی کو کہا کہ 90 سال کی عمر میں وہ چل رہے ہیں، اور اقبال صاحب نے بھی ان کو پیرانہ شاعری کا حوالہ دیا. دو سال بڑھا دیے. ایک شعر سن لیجیے اور اپنے ساتھ گھر لے جائیے، خاص طور سے جو رمضان بھائی کی عمر کے آس پاس ہیں. لہجے کو ذرا دیکھ، لہجے کو ذرا دیکھ جواں ہے کہ نہیں ہے. لہجے کو ذرا دیکھ جواں ہے کہ نہیں ہے. بالوں کی سفیدی کو بڑھاپا نہیں کہتے. مشتاق اشرف صاحب سے جملہ یاد آ گیا. آپ کو انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کو جب ماضی حال سے زیادہ چمکدار نظر آنے لگے، اب مستقبل نظر آنا ہی بند ہو جائے تو سمجھ لو کہ بوڑھا ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رمضان بھائی ابھی اس منزل تک نہیں پہنچے. آئیے آگے چلتے ہیں. میں زحمت دے رہا ہوں جناب شہید پرویز صاحب کو کہ چائے ختم کر کے مائک پر تشریف لائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گفتگو کا آغاز طالب کے شعر سے کر رہا ہوں کہ ڈھونڈے ہے اس مغنی آتش نفس کو جی، ڈھونڈے ہے اس مغنی آتش نفس کو جی، جس کی صدا ہو جلوے پر کے فنا مجھے. کہتے ہیں کہ دل اب ایک ایسی مغنی کی تلاش میں ہے جس کی آواز میرے وجود پر بجلی گرا دے اور اس کی تاثیر سے فنا فضا ہو جاؤں. صدر مجلس عزیزان گرامی، مولانا آزاد کہتے ہیں حسن آواز میں ہو یا چہرے میں، تاج محل میں ہو یا نشاد باغ میں، حسن حسن ہے اور حسن اپنا فطری مطالبہ رکھتا ہے. میں ہر چیز کے بغیر خوش رہ سکتا ہوں لیکن موسیقی کے بغیر نہیں. آواز خوش میرے لیے زندگی کا سہارا، دماغ کی کاوشوں کا مداوا اور جسم دل کی ساری بیماریوں کا علاج ہے. اگر آپ زندگی کی رہی سہی راحتوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک چیز سے محروم کر دیجیے، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا. حسن کے تعلق سے جگر مراد آبادی کا ایک شعر سماعت کریں کہ حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے، حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے، اہل دل کے لیے سرمایہ جہاں ہوتا ہے. موسیقی سے رمضان بھائی کو بھی بڑی رغبت ہے، بلکہ جنون ہے. اپنی آواز خود سے ایک طویل عرصے تک لوگوں کے دلوں پر راج کرتے رہے ہیں، لوگوں کو سحر میں مبتلا کرتے رہے ہیں. 92 سال کی اس عمر میں وہ آج بھی لوگوں کے دلوں کو برما رہے ہیں. کچھ دہائیں قبل موسیقی اور مغنی کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا. غالب کی رسوائی شعروں کے انتخاب سے ہوئی. دلیل دیکھیے، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. رمضان بھائی کو موسیقی کے انتخاب میں رسوا کیا، ان کے دامن کو حریفانہ کھینچا گیا.
ताने कसे गए, तोहमतें लगाई गई, गालियां तक दी गई। बकौल गालिब किस रोज तोहमतें न तराशा किए अदू, किस रोज तोहमतें न तराशा किए अदू, किस दिन हमारे सर पे न आड़े जगा किए। उन्होंने चीख कर कहा कि कोई इंसान किसी दर्जे में क्यों न हो, गालियां देकर तोहमतें लगाकर अपनी इज्जत में इजाफा नहीं कर सकता। आप उन्हें मौसमी हवाएं समझिए जो बहरा गुजर जाती है। मिर्जा गालिब ने रंज गिरा नशी की हिकायतें लिखी थी, सब्र गुरेज पाक की शिकायतें की थी। दलील देखिए, कभी शिकायतें रंज गिरा नशी कीजिए, कभी शिकायतें रंज गिरा नशी कीजिए, कभी हिकायतें सब्र गुरेज पाक कहिए। मगर मौसूफ रंज की जगह सब्र की गिरा नशीनों के हुगर हैं और सब्र की जगह रंज की गुरेज पानियों के तमाशाई है। रमजान भाई तनाई पसंद है, हल्का एहबाब महदूद है, कपस के गोशे में आराम करते हैं। तनाई ख्वाह किसी हालत में है और किसी शक्ल में उनके दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहती। किताबों से बेहद रब्बत है। सच तो ये है कि बकौल जाम एरिया मेरे कमरे में किताबों की सिवा कुछ भी नहीं। अदबी हल्के में वो नहायत सीनियर और कदीम है, लेकिन इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि पुराने चिराग से ही तो चिन्ह निकलता है। लेकिन इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि पुराने चिराग से ही तो चिन्ह निकलता है। बकौल गालिब ताज़ा नहीं है नशे फिक्रे सुखल मुझे, ताज़ा नहीं है नशे फिक्रे सुखल मुझे, तिरियाकी कदीर हूँ दूधे चिराग का। बज़ाहिर सफेद दाढ़ी के बूढ़े आदमी हैं, मगर मिजाज की शोपी और फसला संजी कहती है वो नौजवान और जिंदा दिल हैं। उनके अदबी अवकार और फन मौसीकी का जायजा लें तो पता चलेगा वो एक ऐसा बेकिनार समुंदर है जिसकी आगोश में मालूम नहीं कितने दरियाओं ने रवानी सीखी है। वो मोहल्लिम भी, मोहब्बत व अकुबत के अलमबरदार भी, आगही के दास्तार भी, वो मुगन्नी भी जो अपनी आवाज़ खुद से लोगों पर जादू कर दे, उन्हें जहर जदा कर दे और उन्हें वर्ष सुमोर करने कहने पर मजबूर कर दे। वो बरकत के उस सायादार दरख्त के मिसदार जहाँ इल्म और इल्मा की बारिश होती है और ज्ञान हासिल होता है। वो दीवाना भी जो अपनी जुनून के हिस्सों से आप हो गया सहराओं में नहिस्तान आबाद कर दे। वो गंजे गिरा माया भी जिस पर शायद सदियों फख्र से सरबुलंद करता रहेगा। आए सतरंगियां के सातों रंग को हमारे दामन में समेट ले और कौसे कज़ा के मिसदाक बन जाए। सतरंगियां खुद में शायरी की 7 किस्म को समेटेंगे है। हम नात, गज़ल, नज़म, रुबाई, गीत और मंजूर तासरात वगैरह पर मुश्तमिल 7 तिरंगों का मजमुआ आपके हाथों में है। इस तनाजुर में अंदर शादानी को समाप्त करें कि शफक धनक महताब घटाएं तारे लंबे बिजली फूल, शफक धनक महताब घटाएं तारे लंबे बिजली फूल। इस दामन में क्या क्या कुछ है, इस दामन में क्या 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 कुछ है, दामन हाथ में आए। बकौल अल्फाज, देखो ये मेरे ख्वाब हैं, देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ज़ख्म हैं, देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ज़ख्म हैं। मैंने तो सब हिसाब जाना, वादा सारा का नशा नहीं, पैमाना सारा की कोई अफसानी नहीं, दो दिन तहे जामू नहीं,
वादे शबाना की सरमस्तियां नहीं, गुल अफसानियां को उतार नहीं, तमाम अशार समाज और हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। किताब पढ़िए और जानकारी से कहिए कि क्या ये ऐसी किताब नहीं जो हातिम ताई के एक सवाल का अहाता किए हुए है कि एक बात देखा है, दूसरी बात देखी होगा। सतरंगिया के चंद साथी में 3-4 साथियों बने, यादों की दोजख कांधों पर ढोकर, यादों की दोजख कांधों पर ढोकर आओ आओ इंसानों की फसल उगाने, आओ इंसानों की फसल उगाने। इस शेर ने डॉक्टर वहीद अख्तर के शेर की याद पैदा कर दी है। शेर मुलाजा करें, जिस जगह जुल्म ने काटी थी सरों की फसलें, जिस जगह जुल्म ने काटी थी सरों की फसलें, जब जरा नमी आई तो उस खाक से लश्कर निकले। रुबाई के 4 मिसरे मुरादा कराएं, रुबाई के 4 मिसरे मुरादा करें जो हुकूमत वक्त पर जबरदस्त तंज और हमारी बेहसी पर सवालिया निशान भी है। गुजरात का जश्न यूं मनाएंगे हम, हर शहर में आग अब लगाएंगे हम, चाहे ये जहां इधर से हो जाए उधर, मोदी को कभी नहीं हटाएंगे हम। जितने इस रुबाई के तनादुर में किसी शायर के कहे तो 4 मिसरे मुरादा करेंगे। खून उबलते हुए मंजर नहीं देखे जाते, खून उबलते हुए मंजर नहीं देखे जाते, जिस्म से इतने जुदा सर नहीं देखे जाते। सर पसंदों ने किस वास्ते फोड़े गए बम, सर पसंदों ने इस वास्ते फोड़े गए बम, उनसे खुशियों भरे घर नहीं देखे जाते। रमजान में जैसे देखे कि निकला है जोश से जिहादत पर दोष, जज्बे में बजाय होश सरदा जोश, खोले जो ज़बान तो राज खुल जाता है, बेहतर यही है कि अब है वो खामोश। इसकी तस्दीक काजिब भी यूं करते हैं कि खामोशी ही से निकले गए जो बात चाहिए। कहने को क्या पड़ी है रमजान में किसी जगह कि मैं अपने यारों से जो जख्म दिल पे खाता हूँ, मैं अपने यारों से जो जख्म दिल पे खाता हूँ, उससे निगाह से हर एक चीज छुपाता हूँ। असल बताने के शेर याद आता है कि गैरों को क्या पड़ी है कि रुसवा करे मुझे, गैरों को क्या पड़ी है कि रुसवा करे मुझे, इन साजिशों में आप किसी आसना का था। रमजान में कैसे देखेंगे, जिस चमन का माफिज किया था खुद हमने, सॉरी जिसे चमन का माफिज किया था खुद हमने, उसी ने आग लगाई है आशियाने में। इस दराज़ों में परवीन शाकिर कैसे देखेंगे, मैं ठाल लिए सिमत अबू देख रही थी, मैं ठाल लिए सिमत अबू देख रही थी, पट्टी तुम्हारी पुष्ट पे तलवार खड़ी थी, पट्टी तुम्हारी पुष्ट पे तलवार खड़ी थी। सतरंगियां एक कीमती खजाने के मिस्ताक है, बस ढूंढने के लिए आंख और मोती चुनने के लिए हाथ चाहिए। आखिर में परवीन शाकिर की शेर के साथ मैं अपने बात समेट रहा हूँ। धूप 7 रंगों में फैलती है आंखों पर, धूप 7 रंगों में फैलती है आंखों पर, बात को जब पिघलती है उसकी नरम पलकों पर। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।